to speak. I hope so that my screen is visible to you right now, and I'm just going to define the things that what exactly the speaking is and how can we work on that. You can look at that speaking is the next of making a vocal sound. हम जब भी कुछ बोलते हैं अपने जो वोकल से हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पीकिंग. We can say that the speaking means to converse or expressing one's thought and the feeling in the spoken language. हम अपने तमाम डेफिनेटली जो हमारे जज्बात होते हैं, जो भी हमारी स्कूल ऑफ थॉट होती है, we just try to explain all that things with the help of language, with the help of vocal sound. हम वो तमाम चीजें बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं. To speak often implies conveying an information. It may be from an informal remarks to a scholarly presentation to a formal address. When you guys are moving towards any kind of professional platform, you have to perform something, you have to speak it out, whether it's a formal or the informal situation. You have to keep this thing in your mind that you are bounded to speak something, you are bounded to express your idea or the thought or feeling or anything else like that. So this is the major target of the speaking that we have. Now you can see that all the speaking, whatever you're just gonna speak it up, is a public speaking, whether it's to one person or 1,000. Sometimes we got confused. We thought if we have a crowd of the human beings standing in front of us and we start speaking something in front of them, at that time this is a presentation and this is a speaking or this is a public speaking. We are not going to get the point that even if a single person is going to listen us, or we can say that getting our thought, this is also the part of a public speaking, because when you start sharing your idea or your own school of thought, at that time the person is bounded to get that. So this is the major target we are going to learn today, that what exactly the speaking skills are. Speaking skills are the skill that give us the ability to communicate effectively. When you start speaking, definitely another person who is going to listen us is actually the person who is going to comprehend us. It means वो communication हमारी start हो जाती है, और communication की सूरत में effective बनती है जब आपकी बताई जाने वाली हर बात सामने वाले बंदे को उसी पैनल पे समझ आ रही है, या अगर उस पैनल पे ना भी समझ आए तो कम से कम वो 50% आपकी बात को समझ सके. At that time you are going to be called as a good communicator. अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड द ऑडियंस लिसनर आर नॉट गोइंग टू गेट यू, तो यकीन रखिए ये कम्युनिकेशन नहीं होती. दिस इज अ सिंगल पाथ कम्युनिकेशन ओनली. कम्युनिकेशन का पर्पस यही होता है कि दोनों तरफ से बात एक तरफ से की जा रही है तो दूसरी तरफ से समझी भी जा रही है. These skills allow the speaker to convey his message in a passionate, thoughtful, or convenient manner. You know what? Sometimes we got convinced by the people, and we have to use this convincing manner. Sometimes स्टूडेंट, लर्नर, स्पीकर, जिसकी भी हम बात करें, वो बड़े पैशनेट हो जाते हैं अपनी थॉट को, अपने मैसेज को, या अपनी तमाम तरह बातों को एक्सप्रेस करते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल इन द पब्लिक स्पीकिंग. आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए अपने इमोशंस को इंडल्ज करेंगे अगर कम्युनिकेशन में, तो एट दैट टाइम इट साउंड्स ग्रेट. At that time it sounds very great, and definitely it would be very okay for everyone to get that. Then is the speaking skills also help to assure that one wouldn't be misunderstood by those who are listening. As I told you कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो किसी भी कीमत पे भी जो सामने वाले बंदे हैं उनकी कंप्रीहेंशन होनी चाहिए. वो कहते हैं आपकी किसी बात को किसी गलत मैनर में ना ले रहे हों, वो कहते हैं आपकी बात को इस सेंस में ना दें कि आप समझने वाले को वो बात समझ ही ना आए, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्पीकर कि वो अपनी बात को बोलते हुए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखें. देन इज व्हाट आर द स्पीकिंग स्किल्स? What are the speaking skills? That is what मैं आप लोग को एक रैंडम सा चीज बता देती हूँ जो कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत मैटर करती है. I'll share the screen just after a minute. हम मतलब एक इट्स वेरी सिंपल वन कि हम लोगों को पता है कि जनाब आपकी कम्युनिकेशन में कम से कम 3 चीजें मैटर करती हैं. ठीक है, वो क्या है जी? वो इट्स अ वेरी सिंपल वन. जिस वक्त आप बोलना शुरू करते हैं तो आप में सबसे ज्यादा जो है वो वर्बल, आपके तमाम तरह इमोशंस, इसी के साथ साथ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके हैंड जेस्चर, आपका बॉडी पोस्चर,
इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी टोन, और ये बहुत सारी चीजें जो कि हमारी इस कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है एंड इट्स एक्चुअली मैटर्स फॉर दैट। अगर हम इन तमाम तर चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर हम तमाम तर चीजों के ऊपर अपनी स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ तवज्जो नहीं देते, तो कीप इन माइंड यू आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज अ गुड स्पीकर अगेन। आप देख सकते हैं आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अप्रोक्सीमेटली 7% मैटर करती है, दैट इज वर्ड्स यू गोना स्पीक इट आउट। वो जो लफ्जों का आप इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्पीकिंग समथिंग, ये जो मेरे लफ्ज मुंह से अदायगी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 7% मैटर करते हैं। 38% इज ऑल अबाउट माई वोकल, मेरी टोन कैसी है, मेरी रेंज कैसी है स्पीकिंग की, मैं स्पीकिंग की अभी अपील जो है वो कैसी आ रही है आप लोगों की तरफ, जो मेरी क्रेडिबिलिटी है मेरी आवाज की, क्या मैं बहुत मध्यम तरीके से आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ, क्या मेरी लैंग्वेज की टोन में जरा भी पावर आपको नजर नहीं आ रही। लाइक दीज ऑल द थिंग्स मैटर्स अ लॉट। एंड देन विजुअल एक्सप्रेशन इज आल्सो मैटर, स्पेशली इन द प्रेजेंटेशन, कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आर यू द कॉन्फिडेंट पर्सन, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, क्या आप शर्म करके ऐसे नजरें नीचे झुका के दीवारों को देख के बात करते हैं, लाइक वट एवर द थिंग वी आर गोइंग टू काउंट इट, आपका आई कॉन्टेक्ट, इट्स टोटल साइंस जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है वो मैटर कर रही होती है, तो आई कांटेक्ट आपका बहुत मैटर करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जनाब व्हाई टू स्पीक, हमें क्यों बोलना है, दैट इज द मेजर कंसर्न। लाइफ का सबसे पहला एस्पेक्ट ही वाई होता है कि हम लोगों को जो कुछ भी काम करना, वाई वी गोना डू दैट। सो दिस इज द सेम थिंग, वाई टू स्पीक, क्यों बोले। आप सबको पता है जी, अंग्रेजी जबान इस वक्त एक वो वाहिद जबान है जो कि इंटरनेशनली नेशनली हर जगह पर आपको जरूरत पड़ती है। दुनिया भर की कम से कम 110 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अगर आपको स्टे करना है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। आपको स्टे नहीं भी करना, आपको सिंपली कम्युनिकेट करना, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। आपको चाहे कुछ भी कहीं किसी से कम्युनिकेट भी नहीं करना, आपको इस दुनिया की टेक्नोलॉजी से, इस दुनिया की तमाम तरह चीजों से फेमिलियर रहने के लिए आपको लैंग्वेज का जानना बड़ा जरूरी है। इस वाई के तो बहुत सारे आंसर है लैंग्वेज में हमारे पास। देन इज अ वर्ड टू स्पीक, दिस इज अ मेजर कंसर्न कि बोले क्या। एंड देन हाउ टू स्पीक, एज आई टोल्ड यू, आपकी टोन मैटर करती है, आपकी अपील, आपकी रेंज, उसके साथ साथ आपकी जो क्रेडिबिलिटी है आवाज की, आपका आई कॉन्टेक्ट, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट मैनर कि आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। Then is a why to speak, as we were talking about, कि not just a presentation but also a persuasion. Whatever you just trying to share, get the people's mind share. आपको हर चीज का अंदाजा होना चाहिए। For example, आप कोई बात कर रहे हैं, वे द ऑडियंस वॉइस, दैट इज द मेजर, जिसे हम कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है हमारा परसुएशन का। अब डेफिनेटली आप कभी भी किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई की पॉइंट होगा। अगर आपकी ऑडियंस आपके की पॉइंट को नहीं समझ पा रही, तो कीप इन माइंड आपकी स्पीकिंग बेकार जा रही है वो सारी की सारी। आप एक प्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं मगर उसमें परसुएशन कहीं से कहीं तक नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने की पॉइंट को अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपकी ऑडियंस उस पॉइंट को समझ नहीं पा रही। फॉर एग्जाम्पल, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीकिंग। अगर आप लोगों को स्पीकिंग का पता ही नहीं है, अगर मैं अपनी डिलीवरेंस इतने हाई लेवल पे जाके करती हूँ कि मुझे नहीं पता इस वक्त बैकएंड की ऑडियंस जो है वो मेरे साथ बड़ी बेसिक लेवल की है या कोई मतलब नॉर्मल लेवल है या बहुत हाई लेवल है, बट द लैंग्वेज आई एम यूजिंग राइट नाउ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इस वक्त लैंग्वेज को स्विच बैक कर करके अंग्रेजी उर्दू दोनों को साथ साथ इसका एक मिक्सचर बना के बोल रही हूँ। इट मीन्स कि सामने वाला जो लिसनर है उसको कंप्रीहेंशन, मैंने क्या कहा, अप्रोक्सीमेटली 50% उसकी कंप्रीहेंशन होनी चाहिए। उसकी परसुएशन, मेरा की पॉइंट जो मैं स्पीकिंग के ऊपर रह के बात कर रही हूँ, उसको डेफिनेटली उसके जो ओरिजिन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, लिसनर्स जो बैठे हुए हैं, दे गाइस कैन गेट दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट टू स्पीक। जैसे कि अभी हमने बैकएंड पे कहा, वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाई टू स्पीक, देन इज व्हाट टू स्पीक एंड देन इज हाउ टू स्पीक एज वेल। तो जनाब व्हाट टू स्पीक भी देख लेते हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, वी हैव टू टेक अ स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूर गेटिंग योर आइडिया आउट ऑन द पेपर। आप जब तक अपनी क्लियर जिसे कहते हैं थॉट्स को क्लियर नहीं रखेंगे ना, यू कुडंट कम्युनिकेट एनीथिंग, यू कुडंट कन्वे एनीथिंग। मेरे पास इस वक्त एक आइडिया है, एक मैं प्रॉपरली कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो कि मेरे पास क्या है, दैट इज स्पीकिंग। मैंने एक इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि ठीक है मैं इन एस्पेक्ट्स पे रह के बात करूंगी। आई जस्ट रोट इट ऑन द पेपर। इन शॉर्ट, इस वक्त ये स्लाइड्स आपके सामने एज अ पेपर मौजूद है।
Then is a speaking with a format. As I start with a proper introduction, मैंने properly introduction के साथ start किया कि speaking होती क्या है. फिर मैं अभी आपके सामने उसकी पूरी body discuss कर रही हूँ कि किस किस तरह की speaking होती है. Visual आ जाता है, tone आ जाती है आपकी, उसके साथ साथ आपके expressions आ जाते हैं, आपकी voice की जो है वो credibility आ जाती है. इसके साथ साथ आपने किन पैनल्स पे रह के बोलना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो लोग जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, people are actually observing in you. तो वो तमाम तर चीजें हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. देन इज एन एमिंग टू परसुएशन, जो कि मैंने अभी आपको कहा. देखिए, इफ यू आर अ पैशनेट, इफ यू आर अ गुड एंड द कॉन्फिडेंट पर्सन, बट अगर आपको अपने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी नहीं आ रही, मैंने अभी क्या कहा था, परसुएशन कब होती है, जब सामने वाले बंदे को आपकी बात क्लियर भी हो रही हो. चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, कितने ही पैशनेट क्यों ना हो, अगर आपकी परसुएशन नहीं हो रही तो दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन. उसको रहने दें साइड पे. फिर तो हमारा मेजर एम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मेरी परसुएशन हो जाए. देन इज अ परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट. अगर मुझे खुद मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर मैं खुद अपनी थॉट्स को लेके एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, सो आई कुडंट स्पीक एनीथिंग. देन इज अ हाउ टू स्पीक. अब जनाब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कैसे बोलना है. याद रखिएगा जी, जस्ट फॉलो द स्टार इन दैट. आप इस 6 स्टार को फॉलो करें. द मेजर कंसर्न इज व्हाट, इट्स अ सिचुएशन. We have to follow different situation at the different time. We couldn't say that thing. We have to cram some sentences, and whenever we have a chance to speak something, we just start repeating the same sentence or the phrases or any kind of vocabulary specific words we have. We start repeating that again and again. No, that sounds so bad. We couldn't go with that. We have to follow the star. First of all, we have to look at the situation, what is going on. And after that, we have to look at the task whatever we have. And after that, we have to develop an attitude. As I told you, the attitude is the most important thing that actually enhance your persuasion in the conversation. Whether if you are not working on that, it becomes presentation, not a persuasion. It's very important. If you are going to be the good presentationer, at that time you have to follow the persuasion, and result would be very superb. So you have to follow the star, go with the situation, target the task, we can say, and develop that attitude, and then target your result. That is the major concern we have to focus. And then the most important point is the 3 E's of speaking. What exactly the 3 E's of speaking? Make your conversation quite entertaining. If your audience is getting so obsessed, they're getting bored, they don't have any idea, they are not getting any kind of information from yourself, so keep in mind, वो hardly 10 मिनट सुनने के बाद आपको थक जाएंगे. They couldn't communicate with you. उन्हें मजा नहीं आएगा. आपकी जो conversation है थोड़ी सी entertaining होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपका बोलने का अंदाज इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो लिसनर्स के एयर्स को कैच करे. इसी के साथ साथ आपका एंथुसियास्टिकली चीजों को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर द पर्सन हु इज नॉट एन एंथुसियाज्म, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंथुसियाज्म, यू कैनट वर्क इट अप. आपको वो पैशन, वो जज्बा, वो तमाम तो चीजें दिखानी होंगी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिसनर. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त एक पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही होगी. This man is quite confused. आपको नजर आ रहा है फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे he is just getting quite confused right now. वो हार्डली मेरे ख्याल से 3-4 मिनट भी इस पोडियम पे नहीं रुकेंगे. So this is the most important thing. आप जब कुछ बोले, आपकी बातें थोड़ी सी entertaining हो, लिसनर को अफेक्ट कर रही हो, आपका जो enthusiastic लेवल है वो थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड होना चाहिए. Then is the kind of a speaking situation in which we find ourselves. दैट इज एन इंटरेक्टिव. आपकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, या फिर पार्शियली इंटरेक्टिव और फिर नॉन इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन क्या होती है जी? लुक एट दैट. इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन इंक्लूड द फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन and telephonic calls in which we are alternate listening and speaking, and in which we have a chance to ask for the clarification, repetition or slower speech from our conversation partner. फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं दैट इज एन इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ एक टेलीफोनिक कॉल के थ्रू ही एक तरह से मेरे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं बैठे हुए. वी आर गोइंग टू लुक एट ईच एंड एवरीबडी, एंड हम लोग इसको जो है वो एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू इसको ले रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, आप उसको लिसन कर रहे हैं. हम इसको बार बार डेफिनेटली देखेंगे एट द एंड ऑफ दैट कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही. तो कोई चीज जो आपके माइंड में होगी, you guys can ask it to me. Some speaking situation are partially interactive, such as when giving a speech to a live audience, where the convention is that the audience does not interrupt the speech. The speaker nevertheless can see the audience to judge from their expressions on their anybody like that. Like, you know what?
वैसे इस वक्त अगर देखा जाए ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच राइट नाउ, क्योंकि मैं टॉपिक के ऊपर मसलसल डिबेट कर रही हूँ। मैं अभी तक आपसे इंटरेक्ट नहीं हुई, मैंने कोई क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं की, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट यस आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि आप में से जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट दैट, वो एट द एंड ऑफ दैट मैं क्वेश्चनिंग करूंगी आपसे। लेकिन इस तरह में जिस वक्त हम पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या करते हैं कि हम ऑडियंस को अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सम फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन में बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें जैसे कि आप रिकॉर्डिंग स्पीच होती है, यही लेसन आप अगर अभी रिकॉर्डिंग पे आपको जब प्रोवाइड किया जाएगा तो यही लेक्चर जो है वो नॉन इंटरेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि आप में से कोई भी मुझसे उस वक्त बात नहीं कर सकता, आप में से कोई भी मुझे उस वक्त मुझसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क। Then is a kind words are sweet to the soul. Speak kindness, speak sweetness, and speak the love. That is very important point. अगर आप में थोड़ी सी भी वो काइंडनेस वाला फैक्टर नहीं आता लैंग्वेज को बोलते हुए, आपके अंदर थोड़ी सी वो स्वीटनेस वाला फैक्टर नहीं हमें थोड़ा सा फील हो रहा था, so we couldn't work on that. Because reading directly from the notes is doesn't sounds good. प्लीज इसको अवॉइड किया करें, कभी भी इस तरह की चीजें ना करें कि आप उठा के पेपर और उसकी टोटली रीडिंग करनी शुरू कर दें। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग। टर्न बैक ऑन ऑडियंस, वो उनकी तरफ मुंह भी जो है ना देखें जी पीछे, उनको प्रॉपरली उनको अपनी बैक डिस्प्ले करें। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हैंड्स इन द पॉकेट्स, बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं, दे स्टार्ट पुटिंग their hands in the pocket and they thought that we are looking so good and handsome, so this is sound so bad. ऐसा मत किया करें। Don't use any kind of fillers like no, yes, we just gonna repeat the same words again and again. No, we can say that the nervous gesture मत यूज किया करें, किसी कीमत पे भी बड़े कॉन्फिडेंट जेस्टर्स का इस्तेमाल करें। टॉकिंग टू फास्ट और टॉकिंग टू क्वाइटली साउंड सो बैड। इमेजिन करें मैं आपके सामने अगर इस गाड़ी को थोड़ा सा और तेज कर दूं, मैं कहूँ जी आपने जो है रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, स्टैंड बैक फ्रॉम एन ऑडियंस, हैंड्स इन द पॉकेट, डोंट से नो, लाइक देखें कितना रिपीटेडली और कितना स्पीडली बोल रही हूँ मैं, इट साउंड्स नॉट गुड। और इसी को अगर मैं मजीद स्लो कर दूं, रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स एंड second topic we have that we have to ignore is turn back to audience. Like sounds so bad ना, so we just focus on all that things कि हमें इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखना है in our speaking, that when we start speaking something we couldn't work on that. ये वो चीजें हैं, ये बड़े मेजर सी की पॉइंट है जिनको हमने हर हाल में अपने जहन में रखना होता है। So over to you if you have any question regarding anything that we have discussed today. So let me know. कोई सवाल है जी किसी का तो मुझे बताइए जल्दी से। And if you don't have any questions, so kindly please write down clear in the comment ताकि हम अपने आज के सेशन को वाइंड अप कर सकें।